Good morning, children. Today we are going to read a poem, Elephant Ride. This poem is very famous, written by John Mason. It is in your class 5 course book. Before that, before the explaining of the poem, I want to share the view of the poem and the theme of the poem, and what does the poet want to convey us. Children, क्या आपने कभी हाथी पर सवारी किया है? मैं आप लोगों को सामने कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे ये जंगल में लोग, दिस इज ऑल्सो नोन एज सफारी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस जंगली हाथी को हम लोग कैसे अपना एंटरटेनमेंट के लिए, अपना फन के लिए यूज़ करते हैं? क्या आपने कभी सोचा आपके घर में जो बर्ड्स केज में होंगे, बर्ड्स केज में है, वे कैसे जीते होंगे? Now I want to show you some of such pictures. You just look at them and think about it. You see there, that is also an elephant. It is chained. You see here. Look at the picture and think about it. Children, you think about it, how the elephant is chained. And he is known as Mahout, who trains the elephant is known as Mahout. We take the photographs with the elephant and feel pleasure. The dog also, in your home it may be. So this is the thing, whatever I have showed you and you are watching in my video, this is the common picture, not the rare. When you go to the zoo, we see that, we find that the wild animals, they are kept inside the boundary. We shout at them, but we never think about them, that how do they feel there. Now, in this poem, Elephant Ride, हाथी पर सवारी, इस पोएम में हम लोग एक हाथी के बारे में पढ़ेंगे। ये पोएम एक जानवर के प्रति हम लोगों का कैसा बिहेव है, क्या फीलिंग है, वे दर्शाता है। आप ध्यान से इस पोएम को पढ़ो। Now let's start the poem Elephant Ride. This poem conveys us
a social message about our behavior to the wild animal. Now let's start. On the highway, we stopped for tea at a rest house by the sea. Grassy lawns and shady trees, red tiled huts, and scented bridge. Here, before that, one thing you should remember, the poet of the poem is John Mason. He is telling us that in the first stanza, कवि और लोगों के साथ एक समुद्र के किनारे में एक रेस्ट हाउस में जाके रुके। बहुत दूर कहीं गए होंगे। हाईवे में जैसे कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव में जब जाते हैं कहीं ना कहीं रुकते हैं। पोएट भी अपना परिवार के साथ एक रेस्ट हाउस में जाके रुके थे और वहाँ कहते हैं समुद्र की हवा बहुत ही अच्छा लग रहा था। सामने शैडी ट्री, छायादार पेड़ था। चिल्ड्रन, आप देखो इस पोएम में राइम स्कीम है। मैं राइम स्कीम के बारे में इसके पहले का वीडियो में बताया हूँ। आप अगर इस चैनल में हो तो ज़रूर देखे होंगे। देखो, फर्स्ट लाइन में टी, सेकेंड लाइन सी। टी एंड सी लास्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन, दे आर द टू राइमिंग वर्ड्स। ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है, टी एंड सी। तो टी और सी, ये दोनों वर्ड्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे ए। थर्ड और फोर्थ लाइन देखो, ट्रीज, ब्रिज, ट्रीज, ब्रिज, they are also the two rhyming words. Here you see the pronunciation part is similar, trees, breeze, ss sound. So we will put there b. So the rhyme scheme of the poem is small a, comma, small b. Okay, this is the rhyme scheme of the poem. This thing you will remember. In the picture of the poem, you see there one bus is standing on the road. So many children and the man, the adult people, they are also there going towards the elephant to ride. Now the next we will read now. You see there, this is heaven, we all cried. हम लोग बोले, समुद्र के किनारे जब हम लोग रुके, उस जगह को देखकर हम लोगों ने बताया, वाह क्या बात है, स्वर्ग जैसा है। Strengthening up from our long ride, लंबी दूर का रास्ता हम लोग पार करके आए, इसलिए हम लोग अपना शरीर को टानते हुए, जैसे आप लोग सोने के बाद उठते हो, हाथ पैर को खींचते हो, लाइक दैट। देन वी सॉ ऑन ए हॉट हार्ड रोड ए यंग bewildered एलिफेंट स्टूड। हम लोगों ने देखा कुछ ही दूर में, गर्मी का समय था, रास्ता का जो पिच है वो बहुत गर्म है। ऑन ए हॉट हार्ड रोड, पिच रोड, कड़ा रोड पर बहुत गर्म, उस रोड पर एक यंग हाथी, यंग एलिफेंट, कैसे bewildered, बेचारा बहुत मायूस, कोई चार्मिंग नहीं, उनमें कोई ग्लैमर नजर नहीं आ रहा है। ऐसा एक एलिफेंट खड़ा है, बेचारा जैसा लग रहा था,
सब लोग देख रहा है हाथी को दूसरा नज़र से, जे this is the animal of fun and entertainment, but the poet is telling that it is bewildered elephant. पोएट एक बहुत ही सेंसिटिव है। पोएट लोग होते ही सेंसिटिव। पोएट एंड आर्टिस्ट, दे आर बोथ naturally sensitive. They have the sense to feel other feelings. That is their quality. Now see that. So the poet is telling us that a young bewildered elephant stood. एक बेचारा हाथी रोड पर, उस गर्म रोड पर खड़ा है। नेक्स्ट लाइन देखो। With sad eyes and hurting feet, it rocked slowly in the heat. उस गर्मी में उस पत्थर सब गर्म हो चुका है गर्मी के कारण में। बेचारा बहुत सैड आइज, बहुत दुख भरी आंखों से देख रहा है सबको। उसका पैर में बहुत सारा जख्म है, एक कोई नहीं देख रहा है। That the poet is only watching the things because he is a sensitive man. Now see that. उनका पैर में, हाथी का पैर में काफी जख्म है, इंज्योर्ड है। Ready for some tourist fun, it stood dropping in the sun. बेचारा धूप में खड़े हैं। क्यों? ताकि टूरिस्ट लोग आएंगे और उससे उसको फन मिलेगा, मज़ा मिलेगा, इसलिए उसको रेडी किया गया। रेडीड, उसके लिए रेडी किया गया है, तैयार किया गया है, हाथी को तैयार किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये नेचुरल सीन है। आप जब कहीं जाते हो तो आप देखते होंगे कोई पार्क में, कोई भी टूरिस्ट प्लेस में आप देखोगे अच्छा घोड़ा को बहुत सजा धजा के रखा रहता है। हम लोग जाके फ़ोटो खींचते हैं, उस पर चढ़ते हैं, फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। दैट ऑलरेडी आई हैव शोड यू बिफोर द डिस्कसिंग द पोएम। दीज आर द थिंग्स। द सेम थिंग इज़ देयर। हाथी को रेडी किया गया है, हाथी को तैयार किया गया है, सजा धजा के तैयार किया गया है। जो लोग आएंगे तभी तो चढ़ेंगे, अच्छा से सज धज के रेडी रहेगा, तब तो हाथी पर लोग चढ़ने के लिए आएंगे और उस माहौत को पैसा मिलेगा। दैट इज ए मैटर ऑफ द इकोनॉमी। नाउ यू सी दैट द नेक्स्ट, you see in the picture also the elephant is ready and the people, they are climbing on the elephant with the help of the ladder. You see there near the sea beach. That is the poem. Now see that the next line. Children, you must have patience because this is the process of learning. मैंने कई बार कहा, बच्चों आप जब पढ़ते हो तो आप में पेशेंस होना चाहिए। कोई चैनल को देखते हो, खुलते ही अरे इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, सर क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। यू शुड वॉच द वीडियो अप टू द एंड so that you will get the all information, all the theme of the lesson. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक वीडियो को देखें and you will remain with me. Okay students, now a noisy bus came in, hooting tooting what a din. हुआ हुल्लड़बाजी करते हुए एक बस आया, मतलब टूरिस्ट का बस यहाँ वहाँ घूमता है। आप देखे होंगे ठंड के समय में कई जगह में आप देखे होंगे बहुत लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए, होई हुल्लड़ करते हैं, हल्लाबाजी करते हैं। व्हाट ए डीन, चिल्लाना, हुटिंग एंड टूटिंग, चिल्लाने का आवाज़, होई हुल्लड़ करते हुए एक बस आके खड़ा हुआ और द पैसेंजर्स ऑल टम्बल्ड आउट
and ran to the elephant with a shout. लोग गिरते पड़ते निकलने लगा. The passengers all tumbled down में गिरते पड़ते. हाथी को देखकर गाड़ी रुक गई और लोग हड़बड़ा के बस से निकलने लगा और गिरते पड़ते हाथी की ओर दौड़ा. है हाथी देखो, जैसा आप लोग कोई चीज़ हाथी को देखकर ऐसा करते होंगे, इस तरह का सीन को आप दिमाग में रखो और इमेजिन करो. लोग बस से गिरते पड़ते निकलने लगा. है हाथी हाथी, लाइक दैट. नेक्स्ट, क्लचिंग देयर टिकट्स दे क्लैम्बर्ड ऑन. अब क्या है, हाथी में चढ़ने के लिए तो पैसा लगेगा, हमको टिकट चाहिए. माहूत उससे पैसा कमाता है. आप तो जानते हो, इस तरह का चीज़ आप लोग जू में और भी रोड में भी देखे होंगे, जो हाथी को घुमाने के लिए लोग आता है. कभी कभी पहले भी गांव में हाथी घुमाने के लिए माहूत आया करता था और लोगों को चढ़ाता था और पैसा लेता था. द सेम थिंग इज़ देयर. द एलिफेंट इज स्टैंडिंग फॉर फन. हाथ में सब टिकट लेते हो. क्लचिंग देयर टिकट्स दे क्लेम्बर्ड ऑन. छीना झपटी कर रहा है. हाँ, हम पहले हाथी पर चढ़ेंगे, ऐसा. क्लेम्बर्ड, छीना झपटी करना. रंबल टम्बल, गिरते पड़ते. हैमर्ड ऑन, चढ़ने के लिए अपना नाम को पहले सबसे पहले रखना चाहता है, जो हम सबसे पहले चढ़े. ये दृश्य को आप कल्पना कीजिए. ऐसा दृश्य आप लोग देखते ही होंगे. कोई जगह कहीं आप जाते होंगे, कोई टूरिस्ट प्लेस में, तो अगर इमेजिन करो जे कोई बहुत लंबा सा अरेबियन घोड़ा खड़ा है, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हुजूम लग गया होगा. हाथी खड़ा है, लोग चढ़ने के लिए छीना झपटी कर रहे हैं, मैं पहले चढ़ूँगा. ऐसा दृश्य आप कल्पना करो. इस पोएम में भी ये चीज़ को दिखाया है. नाउ सी दैट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. रंबल टम्बल हैमर्ड ऑन. सब लोग अपना नाम पहले अंकित करने के लिए गिरते पड़ते दौड़ रहा है. लेट्स गेट मूविंग, समवन रोड. कोई चलो, ए जल्दी घुमाओ. लेट्स गेट मूविंग, घुमाओ घुमाओ, जल्दी जल्दी घुमाओ. एक ने कहा, हरी नाउ, आई एम गेटिंग बोर्ड. जल्दी करो जल्दी करो, अब मुझे हो गया वो हाथी में चढ़ना, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है. देखो, see that the feeling of the people. They never ever thought about the elephant. They were rushing to get the entertainment. जैसे कि ये एंटरटेनमेंट जो बोलते हैं, ये बाजार का वस्तु है, पैसा दिया तुरंत तुरंत हमको आनंद चाहिए. Nowadays is the same thing is happening, that we the people have no time to enjoy the nature. We want to get all the things very immediately, within a second, within a minute. We have no patience at all. So you see that the passengers are like that. Last, the elephant started on its way. हाथी अपना लोगों को घुमाने के लिए चल पड़ा. With every step it seemed to say. हर कदम में हाथी लोगों को लेके चल रहा है. जैसे कि आपको मैंने पहले ही पिक्चर में दिखाया, हाथी सबको सवारी करके पीठ पर चढ़ा के घूम रहा है, एक एक स्टेप जा रहा है. With every step it seemed to say. कभी कह रहे हैं, लग रहा है ये बेचारा हाथी हर कदम में कह रहा है, यू आर हैविंग फन, इट्स गुड टू सी. तुम लोग सभी मेरे साथ क्या कर रहे हो, फन कर रहे हो, घूमने आए हो, मज़ा ले रहे हो. लेकिन ये तो देखने के लिए बहुत अच्छा है. जैसे पहले ही पिक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया, किस तरह से कोई फॉरेस्ट में सफारी करने के लिए हम लोग हाथी को हायर करते हैं.
कभी आपने माहौत को पूछा, क्या सुबह में इसको क्या आपने खाना दिया, कितना खाता होगा, कितना खाना देते हो? कोई ने नहीं पूछता है। अब देखो, दैट इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज फुल ऑफ पैथोस। दुख भरी कहानी है हाथी का। वो बताता है, उसका हर स्टेप में वो बताना चाहता है, यू आर हैविंग फन, इट इज़ गुड टू सी, बट कैन समबडी थिंक ऑफ मी। आपको देखने से तो बहुत अच्छा लगता होगा, मेरे साथ फ़ोटो खींचते होंगे, मेरे ऊपर चढ़ के आप लोग घूमते होंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते होंगे, लेकिन बट कैन समबडी थिंक ऑफ मी, क्या कोई भी मेरे बारे में कभी सोचा? कोई भी मेरे बारे में सोचे हो? जे इस हाथी